السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھروں پر ہی رہیے گا ان دنوں، اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے روزانہ کے سبق کی دہرائی کیجیے گا تاکہ آپ کے سالانہ امتحانات کی بہترین تیاری ہو سکے اور آپ کی چھٹیاں ضائع نہ جائیں۔ چلیے آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 6 فروری 2024۔ اسی طرح سے رجب کی اسلامی مہینے رجب کی تاریخ ہے 25 رجب 1445 ہجری۔ دن ہے آج منگل، اور منگل کو عربک میں کہتے ہیں یوم الثلاثہ۔ پڑھتے ہیں نا آپ عربی کی لیسن میں یوم الثلاثہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گلوبل وارمنگ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ کیا ہوتی ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ لفظ گلوبل سے ظاہر ہے پوری دنیا میں، ساری دنیا میں وارمنگ، وارم WARM وارمنگ ING وارمنگ، گلوبل وارمنگ مطلب ساری دنیا میں، یعنی پوری زمین کا بہت زیادہ گرم ہو جانا یا گرم ہو جانا، مطلب زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھنا اور بڑھتے چلے جانا۔ جی زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھنا اور بڑھتے رہنا۔ دن بہ دن زمین کا اوسط درجہ حرارت ہر دن کے مقابلے میں تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں۔ تو گلوبل وارمنگ کی تعریف یہی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ، اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اچھا جی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی وجوہات۔ دنیا میں درجہ حرارت، زمین کا درجہ حرارت دن بہ دن کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا گرین ہاؤس کے اثرات۔ گرین ہاؤس کے اثرات جیسا کہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ گرین ہاؤس شیشے کا بنا ایک گھر ہوتا ہے جس میں پودوں کو اگایا جاتا ہے، ان پودوں کو جو کہ سرد علاقوں میں اگتے ہیں، لیکن اگر ان کو گرم علاقوں میں اگانے کی ضرورت پڑے تو انہیں دھوپ کی بہت زیادہ تپش سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو گرین ہاؤس میں پودوں کی تو بہت اچھی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، لیکن جب گرین ہاؤس کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو گرین ہاؤس میں سے بہت ساری گیسز جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں۔ گرین ہاؤس گیس فضا میں ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ اب زمین پر اور بھی چونکہ ہماری زمین کے اوپر خلا ہے، خلا گیسوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری گیسیں شامل ہیں اس خلا میں، اس فضا میں بہت ساری گیسیں ہوتی ہیں۔ تو گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو، میتھین کو اور آبی بخارات کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جذب کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ زمین پر بھیجتی ہے تو زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے ہم وجہ لکھیں گے گرین ہاؤس۔ گرین ہاؤس کے منفی اثرات۔ منفی اثرات۔ اس کے بعد اوزون لیئر۔
जमीन पर पहुंचती हैं, लेकिन बराह रास्त नहीं। जमीन के इर्द गिर्द खला में एक तह बनी हुई है कुदरती तौर पर, जिसको ओजोन की तह कहा जाता है। ओजोन की तह। अब सूरज की शुआएं बराह रास्त जमीन पर नहीं पहुंचती, बल्कि जो बहुत तेज और शिद्दत वाली शुआएं होती हैं, मुसर शुआएं होती हैं इंसानी सेहत के लिए, जमीन के लिए, इस ओजोन लेयर से जब वो शुआएं फिल्टर होके आती हैं तो उनकी हिद्दत और तपिश कम हो जाती है, और वो जो जितनी वो खतरनाक होती हैं वो कम हो जाती हैं, और फिर वो शुआएं जमीन तक पहुंचती हैं, और जब जमीन तक पहुंचती हैं तो उनकी हिद्दत और तपिश बहुत कम हो जाती है। लेकिन जमीन पर रहने वाले हम जो इंसान हैं, हमारी सरगर्मियां कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इस ओजोन लेयर के अंदर सुराख कर रहे हैं, छोटे छोटे सुराख इस ओजोन तह के अंदर हम कर रहे हैं। अब वो कौन सी सरगर्मियां हैं, ये हमने तफसील से पढ़ा था ओजोन की तह में, कि हम बहुत सारे स्प्रेस और केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, फैक्ट्रियों में, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, या बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो उन केमिकल्स में से, स्प्रे में से एक केमिकल खारिज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज होता है, जिसकी वजह से ये ओजोन तह को, वो कार्बन इस ओजोन तह में छोटे छोटे सुराख बना रहा है, इस ओजोन तह को तोड़ रहा है। तो जब ये ओजोन तह टूटेगी, इसमें सुराख हो जाएंगे, तो जाहिरी तौर पर, वाज़िया तौर पर सूरज की शुआएं बराह रास्त फिर जमीन पर आएंगी, और जब ये शुआएं, जो कि बहुत ज्यादा हिद्दत वाली भी हैं और खतरनाक भी हैं, तो जब ये बराह रास्त जमीन पर आएंगी तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी इसकी वजह हम लिखेंगे ओजोन की तह का टूटना। ओजोन की तह का टूटना, ओजोन की तह में छोटे छोटे सुराख होंगे तो सूरज की शुआएं बराह रास्त जमीन पर आएंगी, जिससे जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। इसी तरह से और बहुत सी सरगर्मियां हैं इंसानों की, जैसे गाड़ियों और सन्नतों में कुदरती ईंधन के इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। कुदरती ईंधन क्या है? कोयला है, तेल है, कुदरती गैस है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जैसे जैसे सन्नतों में, फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में बढ़ता चला जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फ़ज़ा में भी हर वक्त मौजूद रहेगी और रहती भी है, तो इससे दर्जा हरारत फ़ज़ा का बढ़ता चला जाता है। तो तीसरी वजह हम लिखेंगे इसकी कुदरती ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल। इसके बाद एक और वजह है दर्जा हरारत के बढ़ने की, वो है जंगलात का बेदरीग कटाव। जंगलात का बेदरीग कटाव। बेदरीग होते हैं कि बहुत ज्यादा और अंधाधुंध। जंगलात, दरख्त, पौधे, ये सब आप सबको पता है ना, हमें भी पता है कि दरख्त जो है हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं। दरख्त जमीन के फेफड़े होते हैं, ये हवा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको जज्ब कर देते हैं और फिर ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। चुनाचे हवा हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बन जाती है, और इस तरह से हर दरख्त के कटने से फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। तो ये थी वजूहात ग्लोबल वार्मिंग की। हाँ जी, अभी आप बताइएगा नंबर 1, ग्रीन हाउस के मनफी असरात। शाबाश जी, दुआ का
आशिफ, नंबर 2 क्या है? शाबाश। ओजोन की तह का टूटना। कनीज, आप बताइए नंबर 3। कुदरती ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल। खंसा, नंबर 4 क्या है? जंगलात का बेदखल कटाव। ये है वजूहात जिनकी वजह से, जिनके जरिए जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता 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 और बढ़ता ही चला जा रहा है। अब हम देखते हैं इन वजूहात को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इनका कम से कम इस्तेमाल करें या इनके ऑल्टरनेट, इनके मुतबादिल की हल तलाश करें, जिससे जमीन का दर्जा हरारत ज्यादा होने से रुक जाए या और भी बहुत इसकी रफ्तार कम हो जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है और ज्यादा कम हो जाए। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के इक़दाम कौन से हम ऐसे हल तलाश कर सकते हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है और मज़ीद इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। हाँ जी नूरुद्दीन, आप बताइए कोई ऐसा हल, कोई ऐसा कदम जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जो हमने वजूहात पढ़ी है, हम उन्हीं में से इन इक़दाम को तलाश कर सकते हैं। हाँ जी नूरुद्दीन, सोचिएगा। शाबाश। हम दरख्तों को ना काटें, लेकिन काटना तो फिर भी जरूरत है, हमें लकड़ी की तो हमें काटना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जंगलात की हिफाजत करेंगे, जंगलात की हिफाजत करें और मज़ीद शजरकारी करें। अगर हम काट रहे हैं तो मज़ीद आगे से दरख्त पौधे उगाएं भी, मज़ीद शजरकारी करें और बिला जरूरत हो तो दरख्तों को काटें और जरूरत ना हो तो दरख्तों को ना काटें। बिला जरूरत दरख्तों को ना काटें। शाबाश मुबीन। आगे हारिस, हारिस आप बताइए। हाँ जी, सोचिए। शाबाश। शाबाश। कुदरती ईंधन का हम इस्तेमाल कम से कम करें। शाबाश हारिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर? कुदरती ईंधन गाड़ियों के लिए तो हमें चाहिए ना, पेट्रोल गैस ये सब चाहिए। बिल्कुल, हम कोशिश करें पैदल चलें, पैदल चलें या साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल करें। साइकिल चूंकि इसमें कोई कुदरती ईंधन इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए हम साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करें। जी अयान जमीन, आप बताइए कोई आगे। हाँ जी, शाबाश। बिल्कुल, बहुत दूर के सफर हम साइकिल पे तय नहीं कर सकते, ना ही हम पैदल चल के तय कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसका मुतबादिल भी हम तलाश कर सकते हैं ना। हाँ शाबाश। हम जाती गाड़ियां कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें और इसकी बजाय अवामी बसों और गाड़ियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और अवामी बसों और गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। शाबाश। जी अनस वकास, आगे कोई आप बताइए कोई
पानी कम से कम होता चला जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने सबसे पहले देखा, हाँ जी मोइस बताइए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? जी सबसे पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ पढ़ी। मोइस बता सकते हैं क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? शाबाश, हाँ जी, जमीन के दर्जा हरारत का बढ़ना और बढ़ते चले जाना, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात, हाँ जी आगे हमने ये पढ़ा। अवैध साहब बताइएगा वजूहात क्या है? शाबाश, सबसे पहले ग्रीन हाउस के मनफी असरात पहली वजह, हाँ जी वहाज। आप बताइए दूसरी वजह? शाबाश, ओजोन की तह का टूटना। जैसे जैसे ओजोन की तह टूटती चली जा रही है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते चले जा रहे हैं, तो सूरज की शुआएं बराह रास्त जमीन पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाने के अलावा ये शुआएं हमें इंसानों के लिए, इंसानों की जिल्द की कैंसर और आंखों की बीमारी की वजह भी बनती हैं। इंसान इन अमराज में मुब्तला हो सकते हैं इन हिद्दत वाली शुआओं की वजह से। लेकिन इन शुआओं को आने कौन दे रहा है? हम लोग, हम इंसान, हम ही इन शुआओं के लिए रास्ता बना रहे हैं ओजोन की तह को तोड़कर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गैर ज़रूरी स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे वो कार्बन क्लोरोफ्लोरो खारिज होता है और वो ओजोन की तह को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ता चला जा रहा है। तो हम इंसानों को चाहिए ना कि हम पहले तो कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, तो हम इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि ये ओजोन की तह को नुकसान ना पहुंचा सके और ना सूरज की हिद्दत वाली और मुज़र शुआओं को ज़मीन पर आने का बराह रास्त रास्ता मिले। शाबाश। इसके बाद नंबर 3 पे तलाल आप बताइएगा नंबर 3 पे। हाँ जी, जंगलात का गैर ज़रूरी कटाव, बेदरेग या गैर ज़रूरी कटाव, कि हम जंगलात को दिन ब दिन दरख्तों को काटते हैं और काटते ही चले जा रहे हैं। जी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम जंगलात को काट रहे हैं हम इंसान, तो हम मज़ीद आगे से शजरकारी भी करें, मज़ीद दरख्त और पौधे लगाएं, उगाएं, ताकि जहाँ पे दरख्त कम हो रहे हैं वहाँ पे वो बढ़ते भी चले जाएं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ दरख्तों को काटें, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ दरख्तों की कटाई ना करें। इसके साथ साथ हम देखिए इक़दाम भी कवर कर रहे हैं अपने। हाँ जी, इसके अलावा और वजह, कासिम आप बताइए। शाबाश कासिम, कुदरती ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, बसों में, गाड़ियों में, इसके अलावा सन्नतों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पे इंसानों ने कुदरती ईंधन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है, और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में बहुत बढ़ गई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में बढ़ती है तो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी हुसैन आप बताइएगा। बिल्कुल, ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल हम कम करें, ताकि हम वो ईंधन कम से कम इस्तेमाल करें। उसके लिए हम या तो पैदल चल लें या साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और या फिर अवामी बसें और गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। एक बंदे ने जाना होता है तो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ईंधन ज़ाया हो गया, और वो जो ईंधन इस्तेमाल होगा तो फ़िज़ा में उस गाड़ी के ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। अब वो एक गाड़ी अगर बंद हो जाएगी, उसकी जगह पे उस गाड़ी में सफ़र करने वाला इंसान अवामी बस इस्तेमाल कर लेगा या साइकिल इस्तेमाल कर लेगा, तो वही ईंधन नहीं जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और फ़िज़ा में दर्जा हरारत भी कम हो जाएगा। शाबाश जी, ये था हमारा आज का सबक ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजूहात और फिर इसको कम करने के इक़दाम।
آپ نے یہ سب اپنی تحریری کاپی میں لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے گلوبل وارمنگ کی، اس کے بعد اس کی وجوہات لکھنی ہے اور پھر اس کو کم کرنے کے اقدامات لکھنے ہیں. آپ اپنا کام مکمل کیجیے گا. اللہ حافظ.